Good morning, students. In our last class, we have discussed the defects of vision and their correction, right? हमारी आंखों में जो डिफेक्ट्स होते हैं और उनको हम करेक्ट कैसे करते हैं that we have discussed. Now today we are going to discuss the next topic, that is refraction through prism. First of all, we should know that what do we mean by prism. So prism is basically a device which can do two things. It can refract the light ray as well as it can disperse the light rays. Now what do we mean by refraction? That is clear to us. But dispersion क्या होता है? That we will discuss later in our video. Okay. So first of all हम ये समझे कि prism क्या होता है, right? तो prism is nothing but a triangular shape made up of special type of glass. एक 3D triangle जो कि एक स्पेशल टाइप के ग्लास का बना होता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म, राइट? मतलब अगर हम पिरामिड का स्ट्रक्चर समझें, अगर एक पिरामिड जो कि ग्लास का बना हो उसको हम बोलेंगे प्रिज्म, राइट? सो अगर हम देखें 2D शेप ऑफ प्रिज्म तो इट लुक लाइक अ ट्राइंगल. So basically we can define prism as prism is a device which is formed by three rectangular surfaces and two triangular surfaces. तीन rectangular surfaces इस तरह से होंगी और दोनों एंड पर दो triangular surfaces होंगी और जो डिवाइस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म. This prism can do two things. It can refract the light as well as it can disperse the light. Okay. Refraction कैसे होता है? That we are going to see. Let A, B, C be the prism. A ray be incident on one face of the prism and let that face be B, right? अगर मैं इस फेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल, राइट? सिंस यहां पर एयर है और प्रिज्म इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लास, तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड गो लाइक दिस, राइट? ये लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई एंड इट विल गो लाइक दिस, राइट? अब लाइट रे ग्लास से बाहर जाएगी, मतलब एयर में जाएगी, तो अगेन अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो this perpendicular is called as normal, and since the light ray is moving from denser medium to rarer medium, so obviously it will go away from the normal like this, right? अगर इंसिडेंट रे को हम नाम दे देते हैं PQ, so the refracted ray will be QR and RS will be the emergent ray, right? Also the angle which this incident ray makes with the normal NM is called the angle of incidence, that is I. The angle which this refracted ray makes with two normals are called angle of refraction, R1 and R2. And the angle which this emergent ray makes with the normal is called the emergent ray and it is denoted as E, right? Now we can write all the things that are given in the figure here. This PQ, the ray PQ is called incident ray. Obviously the ray which is incidenting on the prism is called as incident ray, right? The ray which is inside the prism, that is QR, is called the refracted ray. So this QR is called refracted ray. Now this RS, that is the ray that is emerging out of the prism, RS is called the emergent ray. RS हो गई emergent ray, right? This NM and MM dash, NM and MM dash, ये दोनों हो गए हमारे normal, right? The angle PQN, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट I is called as एंगल ऑफ इंसिडेंस
R1 and R2 are called the angle of refractions, angle of refraction, and this angle E is called as angle of emergence. So I hope the figure is clear to all of you. The PQ is the incident ray, QR is the refracted ray, RS is the emergent ray, I is the angle of incidence, E is the angle of emergence, and R1 and R2 are the angle of refractions, right? Now this A is called as prism angle. A is called as prism angle. Now there is one more thing. अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से सीधे चली जाती है ना, इट विल फॉलो द डॉटेड पाथ, राइट? लेकिन अभी एक्चुअल में ये ऐसे जा रही है, तो अगर मैं इस रे को एक्सटेंड बैक करूं तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. मतलब लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट अब वो जा रही है ऐसे, तो जो एंगल बना द एक्चुअल पाथ एंड द एक्चुअल पाथ एंड द इमेजिनरी पाथ, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. So this del is the angle of deviation. So in this way we can understand the refraction of light. Light रेयर से डेंसर में गई तो एक बार रिफ्रैक्शन, फिर अगेन डेंसर से रेयर में गई तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन. इस तरीके से ये जो डिवाइस है दैट इज द प्रिज्म, वो लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है. ओके, नाउ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न दैट. Now there is particularly a case, means for a particular value of angle of incidence, this angle of deviation is minimum. ठीक है? The case in which the angle of deviation is minimum is called as angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation, and it is denoted by del m. Okay? Now the next topic that we are going to study is dispersion of white light through prism. हमने अभी पढ़ा कि जो प्रिज्म होता है वो लाइट रे को रिफ्रैक्ट कर देता है, means there occurs the refraction of light through prism. Now we are going to see the dispersion through prism. Dispersion through prism, this we are going to see now. Okay, obviously this is the prism. When a white light is made to pass through the prism, this is the sunlight. Okay, so when it is made to pass through the prism, what will happen? The light ray will go like this after refraction, और जब ये लाइट रे प्रिज्म के दूसरे फेस से पास होगी तो इट विल स्प्लिट इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर्स. ओके, मतलब ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर के बैंड्स में स्प्लिट हो जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7. और ये जो 7 कलर का बैंड बनेगा इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम. ओके, और ये जो 7 कलर होते हैं इनका ऑर्डर हमेशा फिक्स होता है. सबसे नीचे वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. और इसको हम याद इस तरीके से रख सकते हैं विबग्योर. ठीक है, वेयर वी इज द वायलेट, आई इज फॉर इंडिगो, ब्लू इज फॉर बी इज फॉर ब्लू, जी इज फॉर ग्रीन, ओ इज फॉर ऑरेंज, एंड आर इज फॉर रेड. So the phenomena of splitting up of white light into the band of 7 colors when it is made to pass through the prism is called as dispersion of light. Okay? मतलब जब भी लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर के बैंड्स में बढ़ जाती है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, ये जो ऑर्डर है वो हमेशा फिक्स रहेगा और फ्रॉम बॉटम टू टॉप चलेगा.
अगर आप वायलेट को ऊपर और रेड को नीचे रख देते हो तो पूरा जो फिनोमिना है वो गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको हमेशा वायलेट को नीचे लिखना है और रेड को ऊपर लिखना है, ओके। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। नाउ ये तो बात हो गई एक प्रिज्म की। अगर हम ऐसे दो प्रिज्म को एक साथ कंबाइन कर दें तो व्हाट विल हैपन दैट वी आर गोइंग टू सी, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कि अगर हम दो प्रिज्म को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तब क्या होता है वो समझते हैं, ओके। ये मान लिया हमने ये एक प्रिज्म, और इसी के पास अगर मैं यहां एक दूसरा प्रिज्म अरेंज कर दूं सच दैट दोनों का जो प्रिज्म एंगल है दैट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन विथ ईच अदर, then this kind of combination is said to be the then this kind of arrangement is said to be the combination of prism, okay। जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई तो ये प्रिज्म क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको 7 कलर के बैंड्स में डिवाइड कर देगा, जिसमें सबसे नीचे होगा वायलेट और सबसे ऊपर होगा रेड कलर, राइट। अब ये पैटर्न यहां से इमर्ज आउट हुआ। अब since it is going from air to glass, तो obviously it will bend towards the normal like this। और यहाँ वायलेट रेड और ये वायलेट और ये रेड, और जैसे ही ये इस सेकेंड वाले प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये जो 7 कलर में लाइट रे बटी है वो फिर से जुड़ जाएगी और सेकेंड वाले प्रिज्म के बाहर आपको अगेन एक व्हाइट लाइट मिलेगी। इसका मतलब जब हम दो प्रिज्म को कंबाइन कर देते हैं तो the white light will split into the band of 7 colors and it will get recombined when it pass through the second prism, and again we will get the white light emerging out of the second prism, and this whole combination is called as this whole arrangement is called as combination of prism, right। And the phenomena of getting a white light again emerging out of the second prism is called as recombination of light, okay। So I hope the topic the dispersion and the combination is clear to all of you. Now we will proceed toward the next topic. Now the next topic that we are going to see is rainbow, okay। We all are familiar with the rainbow। जब रेनी सीजन में हमको एक सर्कुलर आर्क दिखता है 7 कलर्स का, then that is called as rainbow, right। Obviously we know this। तो रेनबो बेसिकली बनता कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली रेनी सीजन में जब बारिश होती है और उसके बाद जब सनलाइट आती है तब हमको रेनबो दिखता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी आर गोइंग टू सी, ऑब्वियस। एंड देयर इज वन मोर थिंग, जो रेनबो है वो हमेशा हमको तब दिखेगा जब हमारा बैक सन की तरफ हो। इसका मतलब जब हम सन के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे तब हमको रेनबो दिखेगा, ओके। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। जैसे जब बारिश के बाद ये वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, राइट। बारिश के बाद वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। अब जब ये लाइट रे, व्हाइट लाइट, इस वाटर ड्रॉपलेट पर इंसिडेंट होती है तो इट विल गेट डिस्पर्स इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर्स, राइट। तो ये 7 कलर के बैंड्स में इस तरीके से बढ़ जाती है। सबसे नीचे आपको वायलेट कलर मिलेगा और सबसे ऊपर रेड कलर मिलेगा। इसका मतलब when the white light from the when the sunlight is made to incident on the water droplet which behave as a prism, right। जो वाटर ड्रॉपलेट है जो एटमॉस्फेयर में रह गया है बारिश के बाद, ये वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगा, एज अ प्रिज्म बिहेव करेगा। और प्रिज्म का काम क्या होता है, लाइट रे को डिस्पर्स कर देना। तो यहां से लाइट रे डिस्पर्स हो गई। अब यहां से लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ओके। इस तरीके से एक फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस, ओके। यहाँ पे लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर से जब लाइट रे वाटर के बाहर निकलती है तो इट अपीयर्स लाइक दिस। यहाँ नीचे वायलेट और ऊपर
रेड कलर दिखता है। और आपको पता है कि जब भी हम रेनबो देखते हैं तो उसमें हमको सबसे नीचे वायलेट कलर दिखता है और सबसे ऊपर रेड कलर दिखता है, राइट। सो अगर कोई पर्सन इस फिनोमिना को यहां से देख रहा है तो ही कैन ऑब्जर्व इजीली द रेनबो पैटर्न, राइट, जिसमें उसको वायलेट कलर सबसे नीचे दिखेगा और रेड कलर सबसे ऊपर दिखेगा। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यहां हमको एक चीज समझनी है कि जो प्राइमरी रेनबो होता है, रेनबो इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। अभी आपको 10th में सिर्फ प्राइमरी रेनबो पढ़ना है। तो प्राइमरी रेनबो जो बनता है दैट अकर्स बिकॉज ऑफ टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का फुल फॉर्म टोटल इंटरनल reflection. So when the light light ray is having two times refraction, एक बार यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार यहां से, मतलब जब वाटर के अंदर जा रही थी लाइट तब, और दूसरा जब वाटर से बाहर आ रही थी तब, तो दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो जब लाइट रे दो बार रिफ्रैक्शन हो और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, और उस केस में जो रेनबो बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। और यू हैव टू लर्न इट कि प्राइमरी रेनबो में हमेशा दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका जो पैटर्न रहेगा वो हमेशा वायलेट कलर नीचे, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस पैटर्न से आपको जो कलर है वो दिखेंगे। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। I hope it is clear to all of you. Now the next topic is twinkling of stars, right? Twinkle करना मतलब चमकना। तो जो stars होते हैं वो हमको twinkle करते हुए क्यों दिखते हैं वो समझते हैं। Okay, let there be a star here. यहाँ पर ये कोई star है, ठीक है, which is obviously very much far away from us, right? और यहाँ हम अर्थ पर, यहाँ कोई पर्सन है वो इस स्टार को देख रहा है। ओके, यहाँ से कोई पर्सन इस स्टार को देख रहा है, तो ये जो स्टार है वो हमको ट्विंकल करता हुआ दिखता है। तो व्हाई इज दैट सो, दैट वी हैव टू स्टडी नाउ। ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि हमारी अर्थ के आसपास डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस हैं जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, राइट। हमारी अर्थ को कौन सराउंड करता है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और भी कई सारी चीजें हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती जाती है, राइट। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो एयर है वो रेयरर होती जाती है। ओके, so the light ray that incident from star on this surface of the atmosphere, since it is going from rarer to denser medium, so it will bend towards the normal. Similarly, यहां से जब लाइट रे आगे आई तो वो और ज्यादा बेंड हो गई, फिर और ज्यादा बेंड होके कुछ इस तरीके से हम तक लाइट रे पहुंची। और जिस 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 पाथ को फॉलो करते हुए लाइट रे हम तक पहुंची है, हम उसी पाथ पर आगे एक्सटेंड बैक करें तो हमको ये जो स्टार है वो यहां पर दिखता है। मतलब जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उस पोजीशन पर स्टार नहीं दिखते हुए हमको दूसरी पोजीशन पे, जो कि थोड़ा सा ऊपर है स्टार की एक्चुअल पोजीशन पे से, जिसको बोला जाता है एपेरेंट पोजीशन, स्टार हमको उस एपेरेंट पोजीशन पर दिखता है, राइट। ऑल्सो देयर इज अ थिंग कि ये जो रेज, ये जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है एटमॉस्फेयर में, उनकी डेंसिटी ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है, उनकी डेंसिटी हर बार बदलती रहती है, राइट। उनकी डेंसिटी हर बार बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वेपर्स हैं, गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली रेंडमली मोशन में है। तो इसलिए
इन लेयर्स की डेंसिटी हर पर बदलती रहती है, जिस कारण ये जो स्टार है इसकी पोजीशन सेम नहीं रहती है। मतलब अभी ये स्टार अगर यहाँ है तो एक सेकंड बाद यहाँ आ जाएगा, दूसरे सेकंड यहाँ, यहाँ, और चूंकि वो स्टार अब हमसे बहुत दूर है तो हम इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है। और जब हम उसको यहाँ से देख रहे हैं अर्थ पे से, तो हमको वो क्या लगता है कि वो एक ही पोजीशन पे है लेकिन ट्विंकल कर रहा है। तो बेसिकली वो ट्विंकल नहीं करता है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। लेकिन सिंस स्टार हमसे इतना दूर है, इस कारण हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और हमको ये लगता है दैट द स्टार इज ट्विंकलिंग एट इट्स ओन पोजीशन, राइट? सो बेसिकली द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? And due to the different densities of the layers of the gases in the atmosphere. So this is basically the reason behind the twinkling of the stars. This is the important topic. Okay, so you have to read it along with the theory in the book. Okay, now we will proceed to the next topic, that is, now the next topic is advanced sunrise and delayed sunset. इसका मतलब क्या? द एक्चुअल सनराइज होने के 2 मिनट पहले, एडवांस मतलब पहले 2 मिनट पहले ही हमको जो सन है वो दिखने लग जाता है, राइट? तो सनराइज हुआ नहीं है बट उसके पहले ही हमको जो सन है वो दिखने लग जाता है। और सिमिलरली सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी सन जो है वो हमको दिखता रहता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड द डिलेड सनसेट दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, ऐसा क्यों होता है कि सनराइज होने के थोड़े टाइम पहले से ही हमको सन दिखने लग जाता है और थोड़े टाइम बाद तक भी सन हमको दिखता रहता है, वो समझते हैं। ओके, दिस इज द अर्थ। ओके, नाउ दिस विल बी द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब अर्थ सरफेस से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन, राइट? यहां पर एक कोई पर्सन है, वो ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? नाउ जब ये सन इस हॉरिजॉन के नीचे है तो वो मुझे नहीं दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक वो हॉरिजॉन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इट शुड नॉट बी विजिबल टू मी, राइट? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है कि हमारी अर्थ के आसपास एक सेवरल लेयर्स हैं ऑफ गैसेस जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, राइट? यह हमारी अर्थ के आसपास बहुत सारी लेयर्स हैं गैसेस की जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड ऑब्वियसली एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उन सब की डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, राइट? और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं ये जो लेयर्स हैं वो रेयर होती जाती हैं। तो व्हेन the rays from the sun incident on one of the layer, obviously it is moving from rarer to denser medium, so it will bend towards the normal like this, right? Now similarly यहाँ से और बेंड हो जाएगी, फिर इसके बाद ये और बेंड हो जाएगी और इस तरीके से ये लाइट रे हमारी आंखों तक आ जाती है, राइट? और चूंकि ये लाइट रे जैसे हमारी आंखों तक आ गई, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमको दिखने लग जाएगा। और इस कारण हमारा ब्रेन, चूंकि ये लाइट रे हम तक सन के राइज के होने से पहले ही आ गई है, इसलिए हमारा ब्रेन सन की एक इमेज बना लेता है और हमको जो सन है वो यहाँ पे अपीयर होने लग जाता है, राइट? सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले से हमको जो सन है उसकी इमेज दिख जाती है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्रैक्शंस ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ड्यू टू द डिफरेंट densities of the layers of the atmosphere, right? And that's why the sun appears, the image of the sun appears to us here, right? So this is the basic reason why this is the reason of advanced sunrise and delayed sunset. अब जब सनसेट होता है उसके बाद भी यही चीज होती है कि सनसेट तो हो गया, मतलब वो हॉरिजॉन के नीचे चला गया, लेकिन अभी भी उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। और चूंकि उससे आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है,
इसलिए हमारा ब्रेन उसकी इमेज बनाएगा और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी जो सन है वो हमको दिखता रहेगा, राइट? So basically the reason behind the advanced sunrise and delayed sunset is refraction of light. Okay. So that's all for today's class, students. In our next class we will study the scattering of light. Okay. Thank you.